Welcome to Genomics Gupshup. Genomics Gupshup is an initiative by MapMyGenome to create a community around genomics and to simplify genomics for everyone. We are creating this community by getting together experts from the field of medicine, genetic counseling, nutrition, fitness, and more. Please join us as we spread this word about this exciting science of genomics. We are now available on your favorite podcast as well. Just search for Genomics Gupshup on Apple, Spotify, Amazon, or Google Podcast. Today, we are delighted that in this 46th episode of Genomics Gupshup, we have Dr. Ashutosh Kumar, who is a senior consultant in cardiology and clinical director of cardiac electrophysiology and is working with care hospitals. He has more than 20 years of experience in clinical and interventional cardiology, and he's also an associate professor of cardiology at the Kamineni Academy of Medical Sciences and Research, Hyderabad, India. His expertise encompasses a wide range of interventional cardiology and electrophysiology procedures. He's also driven by a strong sense of social responsibility, and so he created the Heartbeat Foundation, which is a charitable trust focused on raising awareness about heart rhythm disorders and facilitating their treatments. He has also authored a book called The ECG to Ablation, which is a comprehensive guide to cardiac electrophysiology for cardiologists. He's made significant contributions to his field through his publications in both national and international journals, and he serves as the editorial board for esteemed journals such as the Clinical Reviews and Opinions, Journal of Cardiology and Therapeutic, and Journal of Scientific and Innovative Research. There's a lot more that I can talk about Dr. Ashutosh Kumar, but I thought it would be best if you could hear it yourself. Welcome to the show, Dr. Ashutosh. Thank you, Anu, for giving the opportunity to speak at your forum. And really, it will be a great that we can give some insights regarding the cardiac diseases and how the things is becoming complex, which was initially simple by the infection, and later on we are getting the manifestation of the disease. It is a bit simple. But in the present scenario, when most of the disease we call as a idiopathic, when we start tracing it, somewhere we get that the genetics is linked here or in some form or in other form. So that's why it becoming very difficult to get the real cause. And when we drill the case, a lot of time we get that the genetics was the one of the reason which has not been explored and which will not be discussed in most of the forum. So it is a great opportunity to speak on this forum, and I think that will give a good message for everybody how to approach and how to know, particularly in the sudden cardiac death and diseases which are happening before time, or we can say coronary artery diseases or hypertension. When it comes, we call it a genetical anticipation, means the things which is happening before time in the next generation. So I will come on those points later on, but right now, whatever you have briefed, most of the things as regarding my the journey in the cardiology. So in brief, I was a plumber, means interventional cardiologist once upon a time, and seeing the plumber, and there is pumper and the plumber, right? Or how do you call that? Like हम लोग इसको कहते हैं कि प्लम्बिंग का काम मीन्स हार्ट के अंदर में कोई किसी तरीके का जो ब्लॉक्स होते हैं, मतलब खून की नलियों में, उसको ओपन करने का जो काम होता है उसको कहते हैं इंटरवेंशनल वर्क, और उसी को कहते हैं प्लम्बिंग वर्क, और यू कैन से इंटरवेंशनल वर्क. But there is other role that cardiologists play, and there are very selected cardiologists. If you are going to count all over India, it may not be more than 30. So that's 30 cardiologists are knowing the other part, which we call as the electrical. So हार्ट के अंदर में कोई इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम हो रहा है जिसमें हार्ट बीटिंग बढ़ता है या घटता है या कभी कभी बंद होता है, जिसमें एक इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन भी आता है सडन कार्डियक अरेस्ट, मींस रिदम डिसऑर्डर्स. हार्ट बीटिंग इतनी फास्ट हुई कि वो हार्ट बीटिंग को बंद कर दी एंड लेटर ऑन पेशेंट अरेस्ट. और उसमें एक ही चीज जो होता है सबसे ज्यादा काम करता है या कुछ करता है, दैट इज सीपीआर. टाइम पर दिया हुआ सीपीआर कैन सेव द पेशेंट, एंड लेटर ऑन वी कैन नो what was the driver. It may be a block in the coronaries, or it may be a genetical disease which has not been attended or which has not been evaluated properly, and that has led to this type of disease. So plumber as well as electrician, I play both the role, but my interest is more on the electrophysiology, and that's why I am pursuing now more in the electrophysiology, because it is really a fascinating, challenging branch,
which very few people are doing, and I take the opportunity at CARE that I am doing that whatever best for the electrophysiology point of view. So I look after CARE High Tech as well as CARE Bhubaneswar for all the electrophysiology services. That's amazing. लेकिन जो जैसे मूवीज में दिखाते हैं कि जो दो चार्ज लेके जैसे कोई Yeah. पेशेंट हो तो उसमें क्या कर रहे होते हैं वो हाउ आर दे रिवाइविंग द पेशेंट? या सो होता क्या है कि कोई पिक्चर अगर बहुत अच्छा चलता है उसमें डॉक्टर का एक रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, या तो स्टार्ट होगा या एंड होगा। और हम डॉक्टर्स को जो सबसे ज़्यादा दिखाया जाता है कि पेशेंट अगर अरेस्ट हो गया या पेशेंट बहुत खराब है तो आइदर दे विल डू द सर्जरी और दे विल डू द रिसस्टिकेशन वर्क, मीन्स आपने पेशेंट को शॉक दिया एंड पेशेंट रिकवर। तो बेसिकली जो शॉक देने की थेरेपी होती है वो होती है कि जब पेशेंट का हार्ट बीट बहुत फास्ट चल रहा होता है, या हम लोग कहते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन मींस बीटिंग्स विच मे नॉट बी समटाइम डिटेक्टेड ऑन द ईसीजीज। तो जब हम लोग पैडल लगाते हैं तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चल रही होती है जिसको हम लोग को सिंक्रोनाइज करना होता है, एंड वी गिव थेरेपी मींस उस समय हम लोग 200 जूल या 360 जूल्स एनर्जी बाहर से देते हैं जिससे कि वो रिदम ब्रेक होता है। दैट लाइफ थ्रेटनिंग रिदम ब्रेक होने के कारण नॉर्मल रिदम आता है एंड द पेशेंट रिकवर्स। सो बीटिंग्स बढ़ना और घटना कहीं से भी हो सकता है, लेकिन जब लोअर चैम्बर जिसको कहते हैं वेंट्रिकल, उसमें कभी जब बीटिंग्स फास्ट होती है जिसको कहते हैं वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया मींस लोअर चैम्बर का बीट बढ़ा, या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन मींस बीटिंग इरेगुलर हुई और फास्ट हुई, दोनों चीज हो रही है, ये आपको 10 सेकंड का टाइम देता है। अगर आपने 10 सेकंड में इसको अटेंड नहीं किया द पेशेंट विल डाई। दैट्स वाई अगर आप हॉस्पिटल में हैं तो शॉक देकर या सीपीआर करके आप रिकवर कर सकते हैं। अगर आप घर पर हो रहा है तो वहां पर भी सीपीआर के अलावा दूसरा तरीका नहीं रहता है टू टाइड ओवर दैट पर्टिकुलर वल्नरेबल पीरियड। तो हम लोग वहां पर उसको डिटेक्ट करते हैं और इमीडिएटली शॉक करते हैं। तो शॉक करने से वो सारी चीजें रिकवर हो जाती हैं। तो पहले शुरू में जाते हैं, ये इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी होती क्या है, राइट? लाइक आपने कहा आप प्लम्बर हो या आप इलेक्ट्रिशियन हो, तो ये अगर आप सिंपल से अगर एक हाई स्कूल के बच्चे को समझा रहे होते हैं तो असल में होता क्या है उसमें, वो सोडियम चैनल्स और ये पोटेशियम ये सब ये इलेक्ट्रिक हमारे सर्किट हमारे शरीर में कैसे होता है, ये आप अगर थोड़ा सा समझा सकते हैं। श्योर। सो ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग है कि हम लोगों के बॉडी में जो भी है, मतलब अगर हम चल रहे हैं तो उसके पीछे एक करंट रहती है, और ये जो करंट्स जो रहती हैं वो पर्टिकुलर चैनल्स के थ्रू डिफाइंड होती है। हम लोगों के जितने सेल्स हैं उसका कॉन्ट्रैक्शन होना या उसके अंदर का व्हाट इज कॉल्ड फंक्शनल मेंटेनेंस होना के लिए एक लेवल का करंट की जरूरत पड़ती है। इवन आप जब हाथ मूव करते हैं तो उसके लिए ब्रेन को एक करंट भेजना पड़ता है एंड देन वो हाथ मूव करता है। बट यूनिक चीज हार्ट के बारे में है कि हार्ट को अपनी करंट सप्लाई होती है, वो ब्रेन पर डिपेंडेंट नहीं होता। दैट्स वाई कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी एक अपना अपने आप में एक अलग साइंस है। और जो ब्रेन से जो डिफाइंड होता है पूरा बॉडी डिफाइंड किया जाता है, मतलब कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं मूवमेंट कर रहे हैं उसमें ब्रेन से करंट स्टार्ट होता है एंड उसके बाद वो मूवमेंट आता है। बट हार्ट का मूवमेंट जो होता है यूनिक होता है। इट स्टार्ट ऑन द 22nd डे इंट्रा यूट्राइन लाइफ, मतलब मदर के बच्चा अगर माँ के पेट में रहता है उस समय धड़कना शुरू करता है। इट इज नॉट लाइक दैट रेगुलर एंड थ्रू आउट द लाइफ, मीन्स आपका जब तक हम लोग डिफाइन करते हैं लाइफ उस समय तक चलता है। सो इट इज सच अ वेरी मीन्स फाइनली ऑर्केस्ट्रेड वर्किंग ऑफ द हार्ट जो कि इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करती है, एंड दिस इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट ऑन द 22nd। गॉड ब्लेस करते हैं कि भाई 22वें दिन के बाद हार्ट बीट करना स्टार्ट करेगा और वो चलता रहेगा। तो उसका एक जनरेटर होता है जिसको कहते हैं हम लोग एसए नोड, जो कि हार्ट के राइट साइड का जो अपर चैम्बर होता है वहां पर लोकेटेड रहता है। और देर इज अ ट्रांसमीटर वी कॉल एज एवी नोड जो कि अपर चैम्बर और लोअर चैम्बर दोनों के जंक्शन पर रहता है, और वहां से जो ऐसे नोड से जो करंट बनना स्टार्ट होता है 22वें दिन से वो थ्रू आउट लाइफ चलता है। तो वहां से जो स्टार्ट हुआ फिर वो लोअर चैम्बर जाने के लिए एक रास्ता होता है जिसको कहते हैं एवी नोड, उसके थ्रू दो तारे रहती हैं जिसको कहते हैं राइट बंडल एंड लेफ्ट बंडल, वो सारी मसल्स को फिर इनर्वेट करते हैं, देन यू गेट द हार्ट बीटिंग। तो जब भी हार्ट के अपर चैम्बर में करंट बना और लोअर चैम्बर में नहीं गया तो हम लोग बोलते हैं कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हो गया, मतलब करंट नहीं नहीं जा रहा है। कुछ लोग इस ब्लॉक को हार्ट के जो खून के ब्लॉक है उसके साथ वो करने लगते, कोरिलेट करने लगते। इलेक्ट्रिकल ब्लॉक्स आर डिफरेंट, और खून के ब्लॉक्स जो हम लोग कहते हैं कि हार्ट में अटैक आ गया या हार्ट, तो वो जो ब्लॉक्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। सो
इन समरी अगर इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम होते हैं तो उसका कारण होता है कि ये जो करंट जो नॉर्मली गॉड डिफाइन किया है कि पर्टिकुलर जगह से स्टार्ट होगा फ्लो होगा, उसमें जो बाधा आती है या उसमें कोई शॉर्ट सर्किट होते हैं जो नॉर्मल सर्किट को छोड़ के दूसरी जगह से करंट का बाईपास होने लगता है, तब वी से दैट वीसीएस सर्कल बन गया या आपके हार्ट में शॉर्ट सर्किट हो रहा है। एंड देन इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी का मेजर रोल आता है कि उस सर्किट को डिफाइन करें। वो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट अपने तरीके तरीके से टेस्ट रहते हैं करते हैं एंड देन उनको बताते हैं कि इस एरिया में आपका शॉर्ट सर्किट हो रहा है, दीज आर द ट्रीटमेंट। तो जो सबसे सिंपल जो तरीका होता है देखने के लिए कि कैसा आपका सर्किटरी काम कर रहा है, तो ईसीजी होगा या कुछ और, या और भी कुछ, जैसे अगर कोई नॉर्मल कोई किसी को पता करना है कि उनकी सर्किटरी कैसे चल रही हो, तो सबसे सिंपल क्या तरीका होता है, और सबसे और ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैसे कैसे हम पता कर सकते हैं? गुड क्वेश्चन। सो इसमें क्या होता है कि हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होता है वो ईसीजी में पूरी तरीके से पता चल जाता है। हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है वो ईसीजी से डिफाइन होती है, और ईसीजी जो होता है आपको ये दिखा देता है कि अपर चैम्बर से करंट नीचे कैसे जा रहा है, और उसके एक एक पैरामीटर ये इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो आपका ईसीजी देख के बता सकते हैं किस टाइम पर कहाँ से करंट कैसे जा रहा है, कहाँ पर उसमें प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही है। और ये एक्टिविटी मोर देन एनफ रहती है नॉर्मल आदमी की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रीड करने के लिए। लेकिन जब सिम्टम्स आते हैं ना, तब उसका जो डिफाइन करने का जो व्हाट इज कॉल्ड एक्टिविटी जो होती है या इवेल्युएशन होता है टोटली डिफरेंट होता है। कि वो जैसे जैसे हमने कहा ना कि 10 सेकेंड्स का टाइम रहता है बेहोश होने में। अगर आपका मतलब हार्ट बीटिंग बंद होती है या ब्रेन को सर्कुलेशन नहीं मिलता है, अब ब्रेन के सर्कुलेशन के लिए ब्लड का पंपिंग होना, पंपिंग के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी का होना, ये सब एक दूसरे से टाइटली लिंक्ड है। सो इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम हुआ, पंपिंग बंद हुई, करंट सॉरी ब्लड ब्रेन के पास नहीं गया, एंड इट इज 10 to 30 सेकेंड मैक्सिमम, द पेशेंट विल बिकम अनकॉन्शियस और ही कैन डाई इफ वी आर नॉट। तो ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, वो एक तो कंटिन्यूअस एक्टिविटी को हम लोग कह देंगे जो कि ईसीजी में पकड़ में आता है। लेकिन अगर मान लीजिए पेशेंट को पाल्पिटेशन हो रहा है, तो उस समय का जब ईसीजी हम लोग करेंगे तभी पता चलेगा कि उसको शॉर्ट सर्किट हो रहा है कि नहीं, इट इज नॉर्मल और एबनॉर्मल। तो वो पता चलता है पर्टिकुलर टाइम के ईसीजी में। जो कि कुछ मरीज लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हमको धड़कन हो रहा है, अभी हम अब जब आए तो उस समय सब कुछ खत्म हो गया। तो वो जो पर्टिकुलर टाइम का ईसीजी रहेगा, देन इट विल डिफाइन द प्रॉब्लम। दैट इज द वन वे। मान लीजिए उस मरीज को ऑन एंड ऑफ पाल्पिटेशन हो रहा है, जब भी वो ईसीजी कराने जा रहा है तब तक नॉर्मल हो जा रहा है, तो हम लोग बोलते हैं कि यू शुड गो फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड ईसीजी रिकॉर्डिंग। मतलब एक छोटा सा पैच लगा देते हैं हम लोग स्किन के ऊपर में, एंड वो ईसीजी को रीड करना स्टार्ट करता है, मतलब रिकॉर्ड करना स्टार्ट करता है। एंड जिस समय पाल्पिटेशन हुआ या मान लीजिए उनको बेहोशी हुआ, तुरंत वो ईसीजी रिकॉर्ड कर लेता है, एंड वी आर एबल टू गेट द उसका कारण पता चल जाता है कि इलेक्ट्रिकल है कि नहीं। क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल के कारण भी हो सकता है, और कभी कभी ब्लड प्रेशर ऑल ऑफ ए सडन ड्रॉप करता है जिसमें ब्रेन को सर्कुलेशन नहीं मिला, उसके कारण, जिसको कहते हैं फेंटिंग अटैक्स। सो फेंटिंग अटैक्स में आपको या तो इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम हो रही है हार्ट की, या ब्लड प्रेशर ड्रॉप करता है। आमतौर से जो बेहोश होने वाले मरीज रहते हैं वो सीधे न्यूरोलॉजिस्ट के पास पहुंचते हैं कि ये बेहोश हो गए थे या ये सांस नहीं ले रहे थे थोड़ी देर के लिए। और मोस्ट ऑफ द टाइम उनका सीटी, एमआरआई, ईईजी, 3 तरीके के टेस्ट जो ब्रेन के डॉक्टर्स करते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट, वो सारे टाइम नॉर्मल पाए जाते हैं। और उसके बाद वो पेशेंट को भेज दिया जाता है कि नहीं, देयर इज नो प्रॉब्लम, यू कैन गो होम। बट ये सारे पेशेंट में ही सडन डेथ या फ्यूचर में प्रॉब्लम आने के रिस्क बने रहते हैं इफ दे आर नॉट गोइंग टू द इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट। बिकॉज आपका एक इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम हो रहा है जिसका इवेल्युएशन नहीं हुआ, और वो सिर्फ क्षणिक मतलब सेकंड्स के लिए होता है। तो उसको पहले सस्पिशन रखना, उसके लिए पहला लेवल का टेस्ट होता है ईसीजी, दूसरा लेवल का टेस्ट होता है ईएलआर मींस एक्सटेंडेड लूप रिकॉर्डर्स, तीसरा नंबर का टेस्ट होता है कि ईपी स्टडी मींस हम लोग कुछ कैथेटर्स डाल के हार्ट के ईच एंड एवरी लेवल ऑफ करंट फ्लो को हम लोग पता करते हैं। और उसमें जो कभी कभी रिदम प्रॉब्लम्स होते हैं उसको कभी कभी ये भी किया जाता है, इंसाइट भी किया जाता है, अगर वो होगा तो स्टार्ट हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो दीज आर 3 लेवल ऑफ टेस्ट वी डू फॉर ऑल द पेशेंट जहाँ पर रिदम प्रॉब्लम, बीओसी का प्रॉब्लम, सडन डेथ और ऑन एंड ऑफ मतलब पाल्पिटेशन हो रहा है, उसमें ये मस्ट होता है। और दैट शुड गो नॉट टू अ कार्डियोलॉजिस्ट, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट।
कार्डियोलॉजिस्ट और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट में एक बहुत मेजर डिफरेंस होता है, जो कि हर आदमी को पता होना चाहिए, कि कार्डियोलॉजिस्ट एज सच इट इज अ जेनरिक, जो कि नॉन इंटरवेंशन से इंटरवेंशन वर्क करते हैं। जब इंटरवेंशन में जाता है तो उनका फोकस और उनका इवेल्युएशन का जो मेथड्स रहता है उसमें रिदम इज नेवर अ प्रायोरिटी, बिकॉज रिदम की जो प्रायोरिटी रहती है वो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट डोमेन में जाती है। सो वो लोग एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी या वाल्व रिलेटेड इश्यूज में ज़्यादा अच्छा ओपिनियन दे पाते हैं। बशर्ते कि अगर पेशेंट इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट के पास जाता है तो वहाँ पर हम लोग रिदम और रिदम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ज़्यादा अच्छे से डील करते हैं। सो देयर इज अ डिफरेंट डोमेन। सो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी इज बेसिकली रिदम प्रॉब्लम और जो धड़कन के प्रॉब्लम्स को डिफाइन करने के लिए बना है। मैंने एक बार मैं डॉक्टर एक कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर कृष्ण राजू जो है, उन्होंने मुझे समझा रहे थे मुझे कि ये ईसीजी कैसे होता है। 1 साल के बच्चे का अलग होता है और करेक्ट। जैसे अब बड़े होते हैं। मुझे तो ज्यादा डिफरेंस पता नहीं चल रहा था, क्योंकि आई एम नॉट अ ट्रेन्ड कार्डियोलॉजिस्ट और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट। लेकिन अलग अलग टाइम पे जैसे लोगों में काफी चेंजेस आते हैं। जैसे कोई औरत हो जो जैसे प्रेग्नेंट हो रही हो, या फिर मेनोपॉज की तरफ जा रही हो, या फिर कोई आदमी जो बच्चे की तरफ, छोटे बच्चे नहीं और फिर बड़े हो जाते हैं। तो अलग अलग टाइम पे क्या एक्सपेक्टेड रहता है कि ये ईसीजी चेंज होता है, या कभी कभी आपको ये भी पता चल सकता है कि ईसीजी देख के कि ये जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है? तो कैसे ये तय कर सकते हैं? या सो आपने जैसे बोला ना कि आदमी जैसे छोटा से बड़ा होता है तो हर चीज में चेंजेस आते हैं। हार्ट में भी ऐसे ही होता है। इलेक्ट्रिसिटी नो डाउट 22वें दिन इंट्रायूट्राइन स्टार्ट होती है, मतलब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। बट उसका जो फ्लो रहता है, पैटर्न रहता है, और उसके लिए एक एक्सपर्टाइज की जरूरत होती है। पीडियाट्रिशियन जो देखते हैं ईसीजी, उनका देखने का तरीका, वो ईसीजी देख के बता सकते हैं इनके हार्ट के चैम्बर्स कैसे हैं, किस जगह पर प्लेस्ड हैं, और इवन जो इसमें हार्ट में होल है कि नहीं। तो वो लोग ईसीजी देख के वो सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करके उसके अनुसार इको करते हैं, एंड देन दे कंफर्म द डायग्नोसिस। लेकिन ये सारी चीजें वो उस सिर्फ उस एंगल से देखते हैं। कभी कभी वो रिदम प्रॉब्लम को भी वो लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, नो डाउट। बट जब रिदम वाला प्रॉब्लम आता है, जो कि कुछ कुछ ईसीजीज में ऐसे पैटर्न्स रहते हैं जो कि सिग्नेचर पैटर्न्स होते हैं, जिसको हम लोग देख के बोलते हैं हाँ इनमें ये सारी प्रॉब्लम होनी ही होनी है। बहुत सारे मरीज हम लोगों के पास आते हैं, सर हम लोगों ने ईसीजी दिखाया था, उन्होंने बोला सब कुछ ठीक है, एंड ने एंजियोग्राफी किया और उसके बाद पेशेंट को बोला कि नो एवरी ब्लॉक्स आर नॉट देयर, सो आप चले। और ये सारे एपिसोड ऑलमोस्ट 1 ईयर बैक हुए थे। उसी चीज को जब हमारे पास लाया गया तो हमने उसी चीज के बोले कि इनको उसी टाइम से, आई थिंक जब लेकर गए थे उसी समय आपको सिनकोप वगैरह हुआ? बोला हाँ उस समय सिनकोप हुआ था, बट दे टोल्ड नथिंग इज देयर। क्योंकि उनका इवेल्युएशन का मेथड और हम लोगों का इवेल्युएशन का मेथड में काफी डिफरेंस रहता है। हम लोग समय से पहले एंटिसिपेट कर सकते हैं कि किस पेशेंट को VOC के चांसेस बने हुए हैं बाय सीइंग द ईसीजी, बिकॉज वो बारीकियां जो रहती हैं उसमें और देखने के तरीके पर डिफरेंस पर आता है। मतलब आप किस तरीके से किस चीज, आप इलेक्ट्रिकल सिस्टम को रीड कर रहे हैं बिफोर इट हैज हैपेंड। हम्म। ठीक उसी तरीके से बच्चों में वो पेशेंट को हो सकता है सिम्टम्स ना हो, तो हम लोग इसी देख के बताते हैं कि हाँ आपके ईसीजी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसमें आपको फ्यूचर में हो सकता है कि पाल्पिटेशन, सिनकोप आए या फेंटिंग अटैक है, यू शुड बी केयरफुल। और वो कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आपका जो है ना शॉर्ट सर्किट, वी कैन सी एंड से ओके आपका है। अभी तक सिम्टम्स नहीं है, ये अलग बात है, क्योंकि मैच्योरिटी ऑफ द करंट फ्लो थ्रू द एबनॉर्मल सर्किट वो टाइम के अनुसार आता है। किसी में 6 महीने पर आ सकता है, 6 साल पर आ सकता है, 60 साल पर भी आता है। तो वही बीमारी जिसको हम लोगों ने 20 साल की उम्र में देखा, हो सकता है 40 साल तक उनके सिम्टम्स ना भी आए, क्योंकि उस रास्ते से करंट पूरी तरीके से मैच्योर्ड तरीके से नहीं फ्लो कर पा रहा। जैसे ही फ्लो करना स्टार्ट होता है, पेशेंट का सिम्टम्स आना आना स्टार्ट होता है, और देन इट बिकम मैंडेटरी टू करेक्ट इट। सो एज के अनुसार प्रेगनेंसी, इवन प्रेगनेंसी में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। और उसमें अगर आपको प्रेगनेंसी के चेंजेस को आपको पता नहीं, तो बहुत सारे टाइम वो उसमें बोला जाएगा कि हार्ट अटैक हो रहा है या पेशेंट का कुछ अदर एबनॉर्मलिटीज चल रही है। सो इट डिपेंड्स अपॉन योर एक्सपर्टाइज, हाउ हाउ वेल यू आर ट्रीटिंग ऑल सॉर्ट ऑफ पेशेंट, मीन्स बच्चे से लेके एडल्ट। एंड इसमें जनरल कार्डियोलॉजिस्ट को का जो आइडियल मतलब इवेल्युएशन का मेथड रहता है वो ज़्यादा सिस्टमेटिक होता है। हम्म। क्योंकि जब हम लोग एक पर्टिकुलर डोमेन में चले जाते हैं तो उनमें वो पर्टिकुलर डोमेन डोमिनेट करने लगता है।
आप इंटरवेंशनल है तो आप पर्टिकुलर सेगमेंट पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि ये है कि नहीं है, तो उसको थोड़ा सा इवैल्यूएशन में उसका पूरी तरीके से प्रॉपरली जाता नहीं। लेकिन आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, सिंकोपी, या उसका मतलब क्या होता है? या सिनकोपी का मतलब होता है पेंटिंग। तो बेहोशी दो तरीके की होती है। एक बेहोशी कि आप बेहोश पड़े हुए हैं बहुत देर तक और पता नहीं है, मतलब मे बी यूजुअली हम लोग कहते हैं 2 मिनट से 3 मिनट से ज़्यादा अगर जा रहा है, तो उसमें जो चांसेस रहते हैं वो ब्रेन की प्रॉब्लम होने के ज़्यादा होते हैं देन कि हार्ट के द्वारा ब्रेन के प्रॉब्लम्स। मीन्स भी करें कि हार्ट जब सर्कुलेटरी इश्यूज आएंगे तो पेशेंट बेहोश होगा, 10 से 30 सेकंड का टाइम देता है कि अगर सर ब्रेन को सर्कुलेशन नहीं मिला तो ही विल बिकम अनकॉन्शियस। और वो बॉडी के अंदर मैकेनिज्म्स होते हैं, हार्ट के अंदर मैकेनिज्म तो टू अगेन रीगेन द एक्टिविटी। और जस्ट फॉर एग्जांपल अ पर्सन हु इज बहुत देर तक खड़ा है, मे भी आधा घंटा पौन घंटा, और उनकी बॉडी में ब्लड प्रेशर एक बैक एक ड्रॉप किया, सो पेशेंट जो हम लोग कहते हैं फेंटिंग हुआ, गिर पड़ा और उसके बाद तुरंत रिकवर कर गए, तो उसमें जो 10 से 30 सेकंड का जो टाइम था जिसमें पेशेंट का अनकॉन्शियस हुआ, तो दूसरा मैकेनिज्म जैसे ही वो गिरे और ही बिकम हॉरिजेंटल, ब्लड सर्कुलेशन वापस है एंड बिकम कॉन्शियस। तो ये प्रोवोक टाइप का जो प्रॉब्लम हुआ जिसको कहते हैं कि सर्कुलेटरी इशू हुआ, कोलैप्स हुआ, या कह सकते हैं सिनकोप, इसी को सिनकोप कहते हैं। मतलब आप, तो उसके 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट की एक बैक एक बेहोशी होना, इट इज रिवर्सेबल, और मतलब रिवर्सिबल कॉज के कारण और आप पूरी तरीके से कंसस हो जाते हैं। तीनों कंपोनेंट जब रहते हैं तो हम लोग कहते हैं सिनकोप। पर यूजुअली इट इज अ सर्कुलेटरी इशू, मतलब ये सर्कुलेशन के प्रॉब्लम के कारण होता है, ये ब्रेन के प्रॉब्लम के कारण नहीं होता है। मोस्ट ऑफ टाइम ये इस तरीके के मरीज तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। सो फेंटिंग मतलब बेहोशी होना जिसमें आप तुरंत रिकवर करते हैं, दैट इज कॉल्ड सिनकोप। अगर वही बेहोशी आपका 3 घंटे 4 घंटे चल रहा है, सो उसमें हार्ट के चांसेस ना के बराबर होते हैं। इट इज मोर अ ब्रेन डिजीज। अब उस समय न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना सही रहता है। और जब यस। तो तो कई लोगों के मैंने देखा है कि छोटी उम्र में से ही उनको पेस मेकर लगाया जाता है, जैसे तो उनके रिदम्स क्या करेक्ट नहीं होते हैं। और आपको ये कैसे पता चल सकता है कि कुछ जेनेटिक कारण से हो रहे हैं, और फिर जेनेटिक टेस्टिंग कैसे करते हैं? क्योंकि कुछ लोग जो जैसे कोई 70 साल के हो गए तब समझ में आ सकता है कि आपकी थोड़ी प्लम्बिंग जो है वो थोड़ी खराब हो गई हो, लेकिन कुछ लोगों की शुरू से ही होती है। कुछ मतलब जो रिदम होती है वो अलग अलग टाइप की होती है। तो वो कैसे आपको पता चल सकता है कि ये जेनेटिक कारण है, या फिर ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, या कोई और कारण से हो सकती है? गुड क्वेश्चन। सो यूजुअली एक हम लोग व्हाट यू कॉल रूल फॉलो करते हैं, एनीथिंग विच इज हैपनिंग बिफोर 20s मोस्ट ऑफ द टाइम इट मे बी हैविंग अ जेनेटिकल बैकग्राउंड। इवन हम लोग जैसे कहते हैं कंप्लीट हार्ट ब्लॉक जो होता है, जैसे अपर से लोअर चैम्बर में करंट नहीं जाता है, तो उसमें इट इज़ अ कॉन्जेनिटल कंडीशन, नो डाउट। मतलब आपको बाई बर्थ आपको इस तरीके का प्रॉब्लम है जो कि डिफरेंट एज में मैनिफेस्ट कर रहा है, मे बी 6 साल की उम्र में, 8 साल की, या प्रेगनेंसी के टाइम में। बट उसमें एक कंपोनेंट रहता है कि इट जेनेटिक्स कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। जेनेटिकली भी डिफाइंड हो सकता है, या कॉन्जेनाइटल कहते हैं, बच्चा जब माँ के पेट में रहता है तो इस तरीके का इन्फेक्शन होता है, और वो इन्फेक्शन थ्रू द प्लेसेंटा आपके बच्चे तक पहुंचता है और वो कंप्लीट हार्ट ब्लॉक कराता है, जैसे एसएलई हुआ, कुछ कंडीशंस रहते हैं। बट मोस्ट ऑफ टाइम ये सारी चीजें जो होती है जेनेटिक्स से ही डिफाइंड होती है कि जेनेटिकल प्रॉब्लम था पर्टिकुलर कंडक्शन सिस्टम के जो आपका चैनल्स रहते हैं वो अफेक्ट हुए, और वो अफेक्ट होने के कारण इनका ओवर द टाइम बीटिंग्स के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। सो कंप्लीट हार्ट ब्लॉक तो मोस्टली नॉट, बट देर आर हार्ट बीटिंग के दूसरे प्रॉब्लम जो बीटिंग फास्ट होने का होता है, जिसमें सडन डेथ होने के भी चांसेस, वो मोस्ट ऑफ टाइम अंडर 20 से, लाइक लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम हुआ, सीपीवीटी हुआ, या ब्रुगाडा सिंड्रोम हुआ, ये ऐसे कंडीशंस है जो कि बच्चों में देखे जाते हैं। और इसमें जो मैनिफेस्टेशन होता है वो कोलैप्स, सडन कोलैप्स या बेहोशी, जिसको सिनकोप हम लोग बात कर रहे थे, वो होता है। और उसमें आपका ईसीजी विल डिफाइन मोस्ट ऑफ द थिंग्स। सो ईसीजी देखकर ही हम लोग बोल देते कि हाँ, इनको ऐसा एपिसोड हुआ था, और इसके उसके पीछे का रीजन ये था। ऐसे ही एक जस्ट आई विल शेयर वन स्टोरी, कि एक लड़की जिसको बार बार बेहोशी हो रहा था, और जब भी उसको इंजेक्शन दिखाया जाता था वो बेहोश हो जाती थी। तो एक बार उसको
ड्यूरिंग द कोविड का वैक्सीन देने के टाइम सी हैज क्रॉस 15, सो उसके पेरेंट्स हैं और वो इंजेक्शन देखी बेहोश हो गई एंड सी वाज नॉट एबल टू रिकवर कि क्यों हुआ। नेक्स्ट टाइम उसको दूसरे कारण से हुआ, मतलब इंजेक्शन के अलावा भी, मतलब कुछ खेल रही थी एंड देन सी बिकम अनकॉन्शियस। तो 2 एपिसोड होने के बाद जब वो डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला कि नो ये शायद उनको वैसोवेगल, मतलब नॉर्मल फेंटिंग जो कि बहुत प्रोलॉन्ग खड़े होने पर और पानी ना पीने के कारण होता है, दैट मे बी। बट देन दे वेंट टू वन ऑफ द इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट एंड देन फाइनली दे केम टू मी कि हमको इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट के बारे में पता चला है कि इसमें कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है। वी इवेलुएटेड 24 आवर का हॉल्टर और उनका बेसलाइन ईसीजीज देखे। अब बेसलाइन ईसीजी में हम लोगों को कुछ सस्पिशन आना शुरू हो गया कि इन पेशेंट में ये ईसीजी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं जो कि इस उम्र के अनुसार सही नहीं है। और बेहोशी होना इंजेक्शन के कारण नॉर्मल है, वैसोवेगल में हम लोग कहते हैं वैसोवेगल नॉर्मल फेंटिंग। बट दूसरा जो एपिसोड था, दौड़ते समय एक व्यक्ति को बेहोश होकर गिर गई और उसके बाद रिकवर में 2 से 3 मिनट का टाइम लगा, विच इज ऑल्सो सेम थिंग। बाद में हम लोगों ने उनका हॉल्टर किया, हॉल्टर में वी गॉट सम इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स जो कि एक डिजीज की तरफ डायरेक्ट कर रहे थे, दैट इज वी कॉल एज अ लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम। तब हम लोगों ने उसका, वो आपका जैसा आपको शायद याद होगा, हम लोगों ने उसका फिर जेनेटिकल इवेल्युएशन कराया एंड वी गॉट दैट पेशेंट वाज एस्टेब्लिश लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम। उतना ही नहीं, उस मरीज का हम लोगों ने जब ईयर टेस्ट कराया, मतलब जो कि थोड़ा बहुत ईयर का प्रॉब्लम था, सी वाज हैविंग सम डेफनेस आल्सो। सो डेफनेस एंड फेंटिंग ये दोनों चीज लिंक्ड रहती है। और इस मरीज में हम लोगों को वो चीज एस्टेब्लिश किया, अगर हम लोगों ने जेनेटिकल टेस्ट नहीं किया होता तो शायद हम लोग उस वहां तक पहुंच नहीं पाते। और सस्पिशन, एंड बेस्ट पार्ट वाज दैट दैट पेशेंट वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द इवेल्युएशन की 2 बार बेहोशी हो गया, हम तीसरा बार नहीं चाहते हैं। तो सी हैज गूगल्ड, सी हैज केम टू नो दैट ये हो सकता है इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम हो। और बेहोशी के लिए न्यूरोलॉजिस्ट को तो हम लोगों ने दिखा लिया, लेकिन इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट को, सो उसकी जागरूकता थी कि उसने इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट के पास ओपिनियन लिया एंड फाइनली दे रीच टू द डायग्नोसिस एंड नाउ पेशेंट इज डूइंग फाइन। उसको कुछ प्रिकॉशंस बोले गए हैं, कुछ मेडिसिन दी गई एंड शी इज डूइंग गुड। So the child did that Googling or the नो, parents? मदर। Mother, okay. I thought it was the 15-year-old who did the. So I was very impressed. कि This is a आजकल very बच्चे. interesting case. Means since they are in Hyderabad and they are having the luxury to get the electrophysiologist, because हर जगह electrophysiologist रहते नहीं हैं and reaching to them is a different task, क्योंकि आप most time people refer भी नहीं करते उनको कि ये प्रॉब्लम आ रही है, you should go to electrophysiologist. most of time patient neurologist के पास जाते हैं और न्यूरोलॉजिस्ट के जो इवेल्युएशंस रहते हैं बड़े फिक्स्ड रहते हैं और उन मोस्ट ऑफ टाइम उसमें हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। डॉक्टर आशुतोष, जब हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स की बात करते हैं और हार्ट के डिसऑर्डर्स की, आप किस किस टाइप के पेशेंट्स देखते हैं और आपको कैसे पता चल सकता है कि किसी की प्रॉब्लम वो जेनेटिक हो या फिर कोई और रीजन से हो? या सो बीमारियां जो आजकल जो हम लोग देख रहे हैं, जिसमें जो सबसे कॉमनली डिस्कस्ड हर फोरम पर होता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। मींस हार्ट के अंदर में जो फैट का डिपॉजिट है जिसके कारण हार्ट ब्लॉक्स आते हैं, स्टेंटिंग की जाती है या बाईपास किए जाते हैं, हार्ट अटैक आता है। वो एक कॉमन वेरिएंट है या कह सकते हो कॉमन डिजीज है, जिसके बारे में जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसको हम लोग एसेस करते हैं कि पेशेंट स्मोकिंग कर रहा हो या उनका लिपिड का एबनॉर्मलिटी, मतलब कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, या जेनेटिकली उन लोगों में ये एथेरोस्क्लेरोसिस जो डिजीज होता है जिसमें कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन समय से पहले आ जाता है। यूजुअली हर आदमी में अराउंड 60-65 के बाद कुछ डिपॉजिट्स और उसका प्रोग्रेशन होना कॉमन बात है। बट आजकल जो हम लोग देख रहे हैं कि उम्र से पहले जो स्टार्ट हो रही है, एज से पहले जो बीमारियां आ रही हैं, उसमें एक रहन सहन के साथ जेनेटिक्स का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि देर आर सम जेनेटिकली डिफाइंड। मान लीजिए लिपिड की ही एबनॉर्मलिटी, तो कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है, जो प्रोडक्शन है, वो जो बढ़ा रहता है, उसके कारण कोलेस्ट्रॉल का जो डिपोजिट होता है उसमें एक जेनेटिकल डिसऑर्डर्स रहते हैं जो कि हम लोग सर्च करते हैं। खासकर अगर आपका लिपिड प्रोफाइल इफ इट इज मोर देन 190, सो देयर इज ऑलवेज रिस्क कि वो आपका खाने पीने से नहीं है, वो जेनेटिक्स के कारण है। एंड देयर द रोल कम दैट नॉट ओनली आप डाइट एक्सरसाइज करें, बट आपको मेडिसिन भी लेने पड़ेंगे। और मेडिसिन तक पर ही नहीं सीमित रहना पड़ेगा, कुछ ही मेडिसिन होंगी जो कि शायद आपका लिपिड को घटाएंगे। कि क्योंकि वी कॉल एज अ फार्माकोजेनोमिक्स यहाँ पर आ जाता है
कि दवा तो दिया लेकिन वो काम नहीं किया, तो इसका मतलब नहीं कि वो काम नहीं करेगी। हो सकता है उसमें पर्टिकुलर टाइप के जीन्स ही उसको मेटाबोलाइज करके एसिमुलेट करके और फाइनली लिपिड को घटाएंगे। सो वन इज जेनेटिकली डिफाइंड लिपिड प्रॉब्लम्स, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, एंड ऑन टॉप अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो वहां पर भी फिर अगेन जेनेटिक्स का रोल आता है कि वी हैव टू चेक एनी जेनेटिक्स issue is there with the enzymes which is not been formed, and that's why आपका कोलेस्ट्रॉल इवन राइट मेडिसिन राइट डोज पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो दैट इज आपने वन। 190 लिपिड का कहा, तो वो या कहाँ तक जा सकता है? आई मीन वो एलडीएल आपका ये आपने कहाँ तक देखा है, नंबर्स कहाँ तक जा सकते हैं? फ्रेंकली स्पीकिंग हमारे पास जो हाईएस्ट वैल्यू आया है वो 230 250 तक का एलडीएल है। आई एम टॉकिंग, हाँ। I don't concentrate on I don't concentrate on total cholesterol, because total cholesterol जो रहते हैं उसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। उसमें LDL आता है, HDL आता है, VLDL आता है, ट्राइग्लिसराइड आता है। तो वो जो फुल वर्टिकल हेट्रोजीनियस पैरामीटर पर हम लोग कोई इंप्रेशन नहीं दे पाते। हाँ, 200 एबव को माना जाता है कि अब नॉर्मल है, एंड देन वी हैव टू सिग्रीगेट। सो लो HDL मीन्स HDL का लो होना और हाई LDL आर टू इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स इन हार्ट अटैक। मीन्स हार्ट अटैक आने के रिस्क बढ़ जाते हैं, जिसमें HDL को तो हम लोग ट्रीट नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो आपका टोटली एक्सरसाइज और आपके जेनेटिक्स से डिफाइंड होती है। बट जो LDL होता है उसमें एक कंपोनेंट आपका फूड, लाइफस्टाइल एंड फाइनली जेनेटिक्स आता है, जिसको हम लोगों को इवेलुएट कराना चाहिए, और खासकर तब जब आपका LDL लेवल 190 को क्रॉस कर रहा है। क्योंकि फैमिलियल हाइपरक्लोस्ट्रीमिया एक कंडीशन होता है जो कि बच्चे मतलब वेरी यंग एज ग्रुप से स्टार्ट होता है। इन लोगों में हार्ट अटैक उम्र से पहले, मतलब इवन इन टीन्स और यू कैन से जस्ट इन द यंग एडल्ट में भी आने के रिस्क बने रहते हैं, इसलिए कोलेस्ट्रॉल का मेडिसिन अर्ली स्टार्ट करना पड़ता है। तो अगर किसी ने समझ लीजिए टेस्ट न किया हो, कोई जेनेटिक टेस्ट नहीं किया हो और कोई लिपिड प्रोफाइल भी न किया हो, हम्म। को कैसे पता चलेगा कि उनके ये फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोमिया है? या देर आर सम स्किन साइंस आर देयर, स्किन्स में कुछ डिपॉजिट्स रहते हैं जिसको हम लोग कहते हैं जेंथिलिस्मा, और जॉइंट्स पर कुछ डिपॉजिट्स रहते हैं, उससे हम लोग अनुमान लगा लेते हैं कि इनको होगा, और वो रन करता है फैमिली में। अगर जेनेटिकल रहेगा तो किसी फैमिली और के? फैमिली में किसी न किसी एक मेंबर को रहता है, तो वो एक इनडायरेक्ट वो खुद ही वो जागरूक हो जाते हैं कि हमारे फादर को था, तो हम लोग चेक कराए, या तो चेक कराएंगे या उनके पैरामीटर्स दिखने लगेंगे। तो जेनेटिक्स का ये एक हार्ट अटैक से रिलेटेड लिंक है। दूसरा इंपॉर्टेंट लिंक है वो है मायोकार्डियल डिजीजेस, मसल्स, हार्ट का जो मसल, क्योंकि उसकी पावर जो होती है मसल्स होती है, और उसके पीछे जो है एक इलेक्ट्रिसिटी दौड़ती है। तो मसल एंड इलेक्ट्रिसिटी मीन्स एरिथमिया, ये जो दो पार्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा जेनेटिकली डिफाइंड रहते हैं। मतलब इनमें जो बीमारियां आती है वो जेनेटिकली काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है उसमें। और उसमें एक जो इम्पोर्टेंट आता है जिसको कहते हैं हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। तो हार्ट का थिक होना मतलब मोटा होना विदाउट एनी रीजन, और उसका डिसफंक्शनल होना, मतलब जो आदमी मोटा है तो ये मानेंगे उसका ताकत हो, ऐसा नहीं। तो हार्ट की जो जो वर्टिकल थिकनेस है वो बढ़ जाती है, और जब थिकनेस बढ़ती है तो उसमें एरिथमिया आने के रिस्क बढ़ जाते हैं। पंपिंग तो अफेक्ट होती ही होती है, बट एट द सेम टाइम मतलब उनको इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स भी आने लगते हैं। तो दैट्स वाई ये बीमारी एक इम्पॉर्टेंट, सबसे खराब चीज़ है कि ये बीमारी 1 in 500, मतलब 500 लोगों में एक आदमी को होने का रिस्क होता है। यूजुअली सारी बीमारियां तो मतलब जो जेनेटिक्स के होते हैं फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ में आते हैं, लेकिन ये प्रोडक्टिव एज में डिटेक्ट होता है। जो न्यूज आती है कि कोई आदमी फुटबॉल खेल रहा था, कोलैप्स किया, डेथ कर गया, या उनको रिसस्टिकेट करना पड़ा, एथलीट्स में जो कार्डियक अरेस्ट होने के जो सबसे बड़े रिस्क जो रहते हैं वो हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी के कारण होते हैं आफ्टर कोरोनरी आर्टरी डिजीज। और अंडर 35 ईयर्स में अगर कार्डियक अरेस्ट होता है तो उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी जो होती है वो हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी के कारण होती है, जिसको बाय डूइंग द ECG एंड इको इज मोर देन एनफ, 90% इंफॉर्मेशन हम लोगों को पता चल जाती है कि उनको है कि नहीं। और उसमें फैमिली का जेनेटिक हिस्ट्री मीन्स उनका जो फैमिली ट्री बनाते हैं तो उससे पता चलता है कि इनके पेरेंट में एक आदमी सडन डेथ कर गए थे, या एक आदमी को ऑल ऑफ ए सडन कोलैप्स कर गए थे और बाद में ICD डालना पड़ गया। तो ये सारी चीज़ की हिस्ट्री मिलती है, लेकिन वो कड़ियाँ तभी आप पहुंच पाएंगे जब उसको इवेलुएट किया जाएगा।
इन सब में अगर हम लोग एंजियोग्राफी करके पेशेंट को भेजेंगे तो हो सकता है कि वो बीमारी वहाँ का वहीं रहे, क्योंकि एंजियो हो सकती है पूरी तरीके से नॉर्मल हो, तो इनमें सांस फूलना, धड़कन आना, बीच बीच में कोलैप्स होना, ये मसल्स की डिजीज होती है जो कहते हैं हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, उसमें मिलता है। दैट इज पार्ट 2। तीसरा जो रहता है इलेक्ट्रिकल डिजीजेज, आई एम टॉकिंग ओनली ऑन द कॉमन डिजीजेज। सो इलेक्ट्रिकल डिजीजेज जो रहती है, मतलब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का, हार्ट बीट का फास्ट हो जाना, स्लो हो जाना, वो कुछ चैनल्स रहते हैं, इलेक्ट्रिकल चैनल जिसको कहते हैं चैनलोपैथीज, उनके कारण होता है। तो कुछ मरीज जिनका नॉर्मल, जब भी आप ईसीजी करेंगे नॉर्मल निकलेगा, लेकिन उनका जब एपिसोड्स होते हैं उस समय हार्ट बीट या तो बहुत फास्ट या बहुत स्लो, जिसमें फास्ट होने को हम लोग कहते हैं वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, जिसके कारण कार्डियक अरेस्ट, मतलब हार्ट बंद हो जाता है, वो होने के रिस्क रहते हैं। जिसमें लॉन्ग क्यूटी होना, लॉन्ग क्यूटी मीन्स ईसीजी का एक पैरामीटर जिस जो कि एबनॉर्मल हो जाता है, और वो पैरामीटर हर ईसीजी में नहीं रहेगा, जहां पर जो कि बहुत सारे डॉक्टर्स को भी पता नहीं होता है कि अगर ईसीजी का जो एबनॉर्मलिटी है वो एक पर्टिकुलर टाइम में रह सकता है। हो सकता है आप दिन में 3 बार करें तो एक टाइम में वो नॉर्मल है, 2 टाइम में एबनॉर्मल, या 2 टाइम में नॉर्मल, एक टाइम में एबनॉर्मल। तो जब तक पूरी ईसीजी उनकी खंगारेंगे नहीं, मतलब ऑल द ईसीजी वी आर नॉट चेकिंग, हो सकता है हमको पता भी ना चले, या उनमें कुछ मैनुवर्स ना किए जाए, जैसे ट्रेडमिल टेस्ट हुआ, या कोई एक प्रोवोकिंग फैक्टर्स नहीं किए, वो ईसीजी के पैरामीटर्स दिखते नहीं है, एंड दैट्स व्हाई इट इज मिस्ड अनलेस दे आर गोइंग टू इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट, जो अनुमान लगा रहे हैं कि शायद इनकी प्रॉब्लम इस तरीके का है, और उसमें ये सारे टेस्ट करने पड़ेंगे जिससे कि पता चलता है। जैसे हमने बताया ना कि वो जो लड़की, जो 15 साल की लड़की थी जिसको 2 बार एपिसोड हुआ, उनके ईसीजी देखे तो सारे ईसीजी नॉर्मल थे, लेकिन फिर भी एपिसोड्स हो रहे। इट वाज द सस्पिशन कि वो इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम हो सकता है, और इसके लिए हम लोगों ने पहले ऑल्टर कराया और ट्रेडमिल कराया, एंड फाइनली वी गॉट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द जेनेटिक्स दैट यस द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम दैट डिजीज। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम का ये एक बहुत बड़ा, मतलब कह सकते हैं चैलेंज होता है कि पर्टिकुलर टाइम का ईसीजी, और उस चीज का सस्पिशन हम लोगों को लॉन्ग टर्म तक रखना पड़ता है बिफोर मेकिंग आइदर रूल इन और रूल आउट, मतलब उसको है कि नहीं है, अनलेस वी आर नॉट गेटिंग फुल इंफॉर्मेशन। तो आपने कहा एक तो लिपिड वाली प्रॉब्लम हो सकती है कि आपके एटलीस्ट जेनेटिक एलडीएल आपका 190 क्रॉस करा तो यू शुड गो फॉर द जेनेटिकल इवेल्युएशन फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा होता है मायोकार्डियल डिजीज, इसमें कॉमन की अगर बात की तो हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। अगर आपके घर में किसी का फैमिली में सडन डेथ हुआ है विदाउट एनी रीजन, तो उसमें इसका इवेल्युएशन होना चाहिए। ईसीजी इको इज मोर देन एनफ, समटाइम जेनेटिक्स की भी जरूरत पड़ती, कार्डियक एमआरआई की भी जरूरत पड़ती है, वो डिपेंड, आपको डॉक्टर बताएंगे। और तीसरा जो है इलेक्ट्रिकल, कंडक्शन। आपको अगर फेंटिंग अटैक्स हो रहे हैं, कोलैप्स हो रहा है, या सडन डेथ हो रहा है, जहां पर आपने सारी चीजें पुरानी, मतलब जो लिपिड से लेकर मायोकार्डियल डिजीज सब इवेलुएट कर लिए, ईसीजी नॉर्मल आ रहा है, देन द रोल ऑफ इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट विल कम, दे विल सी फ्रॉम देयर एंगल कि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या किए जा सकते हैं। तो ये सारे हम जेनेटिक्स के द्वारा भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन तो उनको मिल जाती होगी, अगर अगर उन्होंने पहले कर लिया तो क्या आपके पास ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं जो ऑलरेडी टेस्ट करके आते हैं, या फिर आप ही को सजेस्ट करना पड़ता है कि ये टेस्ट करने से आपको क्लियर कट डायग्नोसिस मिल सकती है? या अभी जो यंग जनरेशन हम लोग के पास मतलब आते हैं, खासकर पर्टिकुलरली जब वो लोग, ये जो सेलिब्रिटीज डेथ और सडन डेथ इन देयर कोलिग्स की, मान लीजिए 32 साल का 32 ईयर्स ओल्ड पर्सन ऑल ऑफ सडन कोलैप्स करके डेथ कर जाता है, तो जो फियर फैक्टर आता है उसके कारण तुरंत वो लोग आके हम लोगों से आंसर मांगते हैं। वहां पर हम लोगों को कभी कभी कुछ इवेल्युएशन करने में एक कंपोनेंट देना पड़ता है कि आपका हो सकता है, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री इस तरीके से चल रही है तो वी हैव टू सजेस्ट। बट ऐसे जेनेटिकल इवेल्युएशन के लिए लोग डायरेक्टली कभी नहीं आते हम लोग के पास में। अगर उनको किसी ने सजेस्ट किया है, इवेल्युएट हुए, तभी हम लोग के पास आते हैं, अदरवाइज मोस्ट ऑफ टाइम दे डोंट रीच टू अस फॉर जेनेटिकल इवेल्युएशन। फैमिली में डेथ हुआ तो जरूर आके पता करना चाहते हैं, और जब हम लोग बोलते हैं तो सुनने के लिए तैयार होते हैं। अदरवाइज हम लोग अगर लाइक हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी का अगर हम लोग को सस्पिशन आया, ईसीजी में हम लोग को कुछ मिला, इको में कुछ मिल रहा है, तो हम लोग बोलते हैं कि आप एक काम कीजिए, अपने फैमिली में जितने लोग हैं उनका सबका ईसीजी, इको एंड जेनेटिकल इवोल्यूशन कराइए, क्योंकि इनमें स्टेब्लिश हो चुका है। वहां पर वो लोग शायद कभी कभी तैयार होते हैं, कभी कभी उसके लिए भी वो तैयार नहीं, बोलते हैं कि नहीं बाद में हम लोग देखेंगे, पहले आप इनको ट्रीट कीजिए। So that is a challenge for us to establish in some selected cases also.
और क्या आपका ये मानना है कि सारे डॉक्टर्स को जेनेटिक टेस्ट के बारे में पता है, या अभी बहुत ही कम लोगों को मालूम है कि इससे कुछ फायदा भी हो सकता है? या सो जितने मेट्रोज हैं, आवर रीच और यू कैन से जेनेटिकल जो यूनिट जो हम लोग ये काम करती है, जो कि हर मतलब हॉस्पिटल्स में हम लोग की दुविधा ये है कि जितने हॉस्पिटल्स हैं, आई हम्म। से 90 to 95% हॉस्पिटल्स आर नॉट इक्विप्ड और बैक्ड बाय जेनेटिकल इवैल्यूएशन, 90 to 95, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको लेकर उनके हॉस्पिटल को कोई मतलब जो है ना कि जो इट इज ए हेल्थ इंडस्ट्री, हम्म। सो दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट कि कॉज क्या है। ट्रीट करने के में जितना हमको खर्च करना है या उससे रिलेटेड कोई फैसिलिटी है उसमें वो लोग जरूर इंटरेस्ट लेते हैं। बट व्हेन इट कम्स, जैसे हम लोगों के डिवीजन है, आई एम वर्किंग इन वन हॉस्पिटल, तो यहाँ पर हम पूछेंगे कि जेनेटिकल चेकअप करना है तो दे विल से दैट थर्ड पार्टी से हम लोग करवा लेंगे। एंड इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस कि जब पेशेंट आता है ही कांट बी एबल टू बियर दैट मच, एंड उसकी जो इवेल्युएशन होना या उसका काउंसलिंग होना, इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, एंड वी ऑल हैज टू बी इन द वन पेज। सो जेनेटिकल यूनिट मोस्ट ऑफ सेंटर्स में नहीं रहते। और कार्डियोलॉजी में, पर्टिकुलरली इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में, इट इज हैज गॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले, जहाँ पर बहुत सारी बीमारियों को का आंसर जेनेटिकल इवैल्यूएशन के बाद ही इस्टेब्लिश हो पाता है। हम लोग ट्रीट जरूर करते हैं, बट व्हेन वी हैव टू गिव द आंसर रिगार्डिंग कॉज, वी हैव अगेन डिस्टिल आवर ऑल द इंफॉर्मेशन टू द जेनेटिस्ट। हो सकता है कि कुछ सालों में जब ज्यादा लोगों को पता चले तो हो सकता है कि ज्यादा स्प्रेड आउट हो जाएगा, तो एटलीस्ट बड़े शहरों में थोड़ा तो एटलीस्ट अवेलेबिलिटी है। और जैसे हम जैसे कंपनीज भी है जो आके सपोर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक और बहुत लोगों के करने से हम पूरे देश को फायदा होगा। लेकिन अब वो अलग बाद में बाद में बात कर सकते हैं कि कैसे इसको कर सकते हैं। लेकिन आपने एक बीच में अपने एक ये बताया था कि कुछ मेडिसिन कुछ लोगों पे काम करती है और कुछ नहीं। तो ये तो स्पेशली कार्डियोलॉजी में, जैसे अगर वो प्लेविक्स हो या क्लोपिडोग्रल या इन सब बीमारियों में भी काफी फायदेमंद होती है। तो वो शायद सबसे इजी होगा डॉक्टर्स को समझना, क्योंकि उससे ये फायदा पता आई मीन ये पता कर सकते हैं कि ये दवाई काम करती है नहीं काम करती है। तो आपको क्या लगता है कि फार्माकोलॉजी ज्यादा जल्दी इजीली अडाप्ट होगी, या फिर जो जो डायग्नोसिस रूट कॉज है वो पहले पहले शुरू होगी? सो जेनेटिक्स का जो तीन इम्पॉर्टेंट रोल होता है जो हम लोग देख रहे हैं, वन इज टू स्टेब्लिश द डायग्नोसिस, जो कि हम लोग सिंड्रोम को करते हैं, बीमारी को करते हैं, बट कॉज को अभी तक हम लोग नहीं कर पाते हैं। उसमें एक रोल रहता है। दूसरा होता है रिस्क असेसमेंट। कुछ बीमारियां हो सकती हैं कि आपके पास नहीं है, लेकिन उनके आने के रिस्क, जिसको कहते हैं रिस्क, ऐसे मान लीजिए आपको हाइपरटेंशन होने के रिस्क क्या है, एट्रियल फिब्रिलेशन होने के रिस्क, जो कि इनमें जेनेटिकल कंपोनेंट रहता है, एंड इट इज अ पॉलीजेनिक सिंगल जीन जिस पर हम लोग डिफाइन करें। तो अभी तक जो हम लोगों के कंट्री में जो चल रहा है, इट इज टोटली एस्टेब्लिशिंग द डायग्नोसिस, बट पॉलीजेनिक पॉइंट ऑफ व्यू वी आर स्टिल लैगिंग बिहाइंड। हम लोगों के पास वैसे नहीं कि पर्टिकुलर जीन्स के सबसेट बताएं। अभी आप लोगों ने इन दैट डायरेक्शन। बट जो तीसरा जो इम्पोर्टेंट रहता है ड्रग्स से रिलेटेड, कि ड्रग्स काम करेंगी कि नहीं करेंगी। और कुछ लोगों में जब हम लोग ड्रग्स देते हैं तो रियली अफेक्ट नहीं आता, तो हम लोग कंपनी चेंज कर देते हैं। वी डोंट वांट टू नो व्हाई, वी विल से probably this drug is not from the good company, so और कंपनी में भी अब उस स्थिति में एक जेनेटिकल इवैल्यूएशन करना चाहिए। एंड इट मे बी पॉसिबल दैट वो ड्रग काम कर रहा होगा और किसी में ड्रग नहीं भी काम, तो वो एंजाइम की डिफिशिएंसी के कारण होता है वो पर्टिकुलर। एंड लाइक वारफरिन हुआ, क्लोपिडोग्रिल हुआ, और हम लोगों के कुछ एंटी एरिथमिक्स रहते हैं, उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल रहता है कि ये पेशेंट में रिस्पॉन्ड करेगा कि नहीं करेगा। सोटलार करके रहता है। सो दिस easy for us to व्हाट इज अ प्रिसीजन मेडिसिन, जिसको हम लोग कहते हैं कि किस मेडिसिन को किस मरीज पर यूज करना है, उस डायरेक्शन में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ इट इज। बट यस, अवेलेबिलिटी के कारण और जो हॉस्पिटल्स का जो अभी के नॉर्म्स हैं उसमें
it is a challenge because hospitals don't want to what is called accommodate these services as a full-time services in their hospital. Most of the time, they want a third party, or they want as because I understand their focus is more on the growing the patient number than the quality which it provides. It is going to add on the quality, means what you are doing, why we are doing. That makes a lot of difference, and patient का quality of life better होता है. They are not living like that girl 2 times syncope हुआ. अगर हम लोग उसमें अगर जेनेटिकल टेस्ट नहीं करते, एस्टेब्लिश नहीं करते, तो हो सकता है वो पेशेंट को पता भी नहीं होता कि बीमारी चल रही है, और ये भी पता नहीं कि उसके बच्ची को भी हो सकता है और उसके भाई को भी हो सकता है. So that makes a whole family living in the fear factor, which we can diffuse after knowing the exact cause and knowing what are the treatment options available. नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने. तो जब पॉलीजेनिक्स रिस्क स्कोर की बात करते हैं, तो हम जैसे कार्डियो मैप में या फिर जीनोम पत्री में जो हम करते हैं, तो बेसिकली वही करते हैं ताकि लोगों को ये पता चल सके कि उनके कोई रिस्क है, और रिस्क से लाइफस्टाइल में, रहन सहन में क्या चेंज कर सकते हैं. और ये जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है, उसमें तो लिखा हुआ था कि 80% जो है लाइफस्टाइल से हम ये काफी सारी जो कॉम्प्लेक्स बीमारियां हैं उनको हम कम कर सकते हैं. लेकिन लोगों को इतना शायद इतनी नॉलेज नहीं है, और अगर नॉलेज हो तो फिर वो भी देख सकते हैं कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे हम इम्प्रूव कर सके. तो एक चीज मैंने देखी, आपने एक बहुत अच्छी है कि ये जो हार्ट बीट फाउंडेशन जो आपने बनाई है, वो आपने बहुत अच्छा काम उसमें हो रहा है. तो आपने क्यों वो शुरू की, क्या आप बता सकते हैं? सो हार्ट बीट फाउंडेशन बनाने का जो मेन पर्पस था कि हम लोग अभी तक हार्ट बीटिंग का मतलब सिर्फ हार्ट बीटिंग है कि नहीं वहां तक सीमित नहीं रहना चाहते. और अभी जो बीटिंग्स की जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसमें सडन डेथ भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मैनिफेस्टेशंस में आता है कि पहला इवेंट डेथ कर गया, वो हाउ टू गो अहेड, हाउ टू नो अबाउट इट, व्हाट कैन बी द कॉज. और रिदम की जो स्टोरी है, या जो कह सकते हैं रिदम को, हार्ट बीटिंग को हमेशा इग्नोर किया गया है मोस्ट ऑफ द सेंटर्स और मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में. इसके इंटरवेंशनल विंग को बहुत ही स्ट्रॉन्ग किया गया है, बट उसके जो रोल जो रहता है इवेल्युएशन के लिए, या उसके सिम्टम्स के अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस सिम्टम पर आपको एक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए देन गोइंग टू जनरल कार्डियो और इंटरवेंशनल कार्डियो, बिकॉज सबके डोमेन्स अलग रहते हैं. इसीलिए हमने वर्ड यूज किया था प्लम्बर वर्सेस इलेक्ट्रिशियन. इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए आपको इलेक्ट्रिशियन के पास जाना पड़ेगा, प्लम्बिंग वर्क के लिए प्लम्बर के पास जाना पड़ेगा. If you are giving a electrical job to a plumber, certainly he may be knowing some basics, but he may not be able to do the advanced whatever anticipation. जैसा हमने बताया, एक मरीज में हम 1 साल पहले ही बता चुके थे ईसीजी कि इस ईसीजी पर हम पेसमेकर इम्प्लांट कर दिए होते, क्योंकि आई डोंट वांट दैट पेशेंट शुड फॉल डाउन एंड ब्रेक हिज लेग और हैंड बिफोर कमिंग टू द हॉस्पिटल, और उसके बाद हम उसको डायग्नोज करें. बहुत सारे पेशेंट्स जो रहते हैं वो डायरेक्टली न्यूरोलॉजी और कभी कभी ऑर्थोपेडिक्स में ट्रीट किए जाते हैं, कुछ दिनों के बाद डिस्चार्ज होते हैं ना एक्सपायर कर जाते हैं, बिकॉज अवेयरनेस इज नॉट देयर कि आपका जो सिंकोप है या पेंटिंग के अटैक हो रहे हैं वो आपका ब्रेन के कारण नहीं आ रहा है. ब्रेन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट हार्ट डिजीज, एंड वो हार्ट डिजीज आपका ब्लॉक्स नहीं है, वो आपका इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है. द अनस्टेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम इज लीडिंग टू योर पेंटिंग अटैक, जिसको आपको हार्ट के थ्रू ही करेक्ट करना पड़ेगा, ब्रेन के थ्रू नहीं करना है. तो वो सारी चीज़ों का लोगों को अवेयर करना या उसके बारे में जानना. जैसे धड़कन जब होता है तो मोस्ट ऑफ टाइम डॉक्टर के पास जाते हैं तो दे कैन गेट द सम इंफॉर्मेशन, लेकिन ये मानना है कि पेशेंट का हार्ट में बीटिंग के शॉर्ट सर्किट हो रहे हैं और उसका ट्रीटमेंट है, इसके बारे में जागरूकता लोगों के पास नहीं, बहुत कम लोगों के पास भी है. और कुछ लोगों को ये भी पता नहीं कि इसको क्योर भी किया जा सकता है, सो वो हमेशा दवा लेते रहते हैं या उनको डरा दिया जाता है. ऐसा भी हुआ है कि डॉक्टर बोलेंगे आपको सर्जरी करनी है, जबकि ये सर्जरी नहीं है. इट इज़ लाइक जैसे आंख में कैटरेक्ट का ऑपरेशन होता है, ठीक उसी तरीके से लेजर सर्जरी है. not to say surgery, it is a procedure, laser procedure. We are putting one catheter at that particular short circuit area, and such advanced procedures are available in India, but it is not being utilized because of the what you call misinformation. आपको proper information नहीं है और उसके लिए आप treatment नहीं करा पाते. तो हम लोगों का जो ये है कि
we want that electrophysiology, which is the electrical department of the heart, they should be known, their services, their complaints should be seen with a different evaluation. जैसे किसी को पेरियाट्रिक सर्जरी करनी तो जनरल सर्जन के पास जाने पर उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता। तो हम लोग रिदम और रिदम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और उसमें लोगों को जागरूक करने के लिए और ट्रीटमेंट के क्या ऑप्शंस रहते हैं इसकी जानकारी देने के लिए, और उसमें अगर हम लोग कुछ रोल अपना प्ले कर रहे हैं फाइनेंशियली एज अ चैरिटेबल ट्रस्ट इट इज, वी कैन हेल्प देम ऑल्सो कि इसको इस तरीके से किया जा सकता है। और ये हॉस्पिटल के साथ हम लोग टाई अप करके इसको आपको एक कम कॉस्ट में प्रोसीजर दिया जा सकता है, क्योंकि हम लोग के प्रोसीजर जो होते हैं वो 2 लाख से स्टार्ट होके 12-25 लाख तक भी पहुंचते हैं। सो इट डिपेंड्स कि प्रोसीजर क्या किए जा रहे हैं, उसे कॉस्ट क्या है और ऑप्शंस क्या क्या है उनके पास में। ये बहुत बहुत ही अच्छी अच्छी बात है। और आई थिंक लोगों को और आई थिंक नॉलेज होगी तो और आएंगे और उनको अपनी जिंदगी सही तरह से जी सकेंगे। तो आपने कहा एक इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर अलग अलग काम आते हैं, तो अलग अलग लोग अलग अलग टाइम जब आपको डॉक्टर को दिखाना होगा तो आप करेक्ट डॉक्टर के पास जाएंगे तो ही आपका करेक्ट इवैल्यूएशन होगा और करेक्ट प्रोसीजर्स भी होंगे। तो अब हम जाते हैं नॉर्मल। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि प्रिवेंशन आप किससे कहते हैं? प्रिवेंशन किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं? जैसे मैंने देखा कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने कहा कि 80% हार्ट डिजीजेस प्रिवेंटेबल है, लेकिन प्रिवेंशन क्या होता है? क्या एक नॉर्मल आदमी क्या कर सकता है? ओके, सो इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन है। बहुत ही आज के टाइम में जितने लोग हॉस्पिटल में पैकेजेस लेकर अपना इवेल्युएशन करके वेरिफिकेशन चाहते हैं कि हमको ब्लॉक्स नहीं है, उनके लिए ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू कैन सेल्फ वेरीफाई योर सेल्फ दैट यू आर डूइंग गुड। और हम उन सभी मरीजों को ही बोलते हैं जो मेरे चैम्बर में आते हैं कि आप अपने आप को वेरीफाई कर सकते हैं। हार्ट इज what is called 365 7 days and every hour every minute it is working। इसकी एक्टिविटी को आप खुद चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है इट विल गिव सम सिम्टम्स, जिसको कहते हैं कि ये परोक्ष नहीं रहेगा, ये सब चीज प्रत्यक्ष, मतलब सामने में आपको दिखने रहेगा कि मेरे को पहले चलने में सांस नहीं फूलता था अब सांस फूलना शुरू हुआ, या पहले चलने के टाइम में भारीपन नहीं आता था भारीपन। तो जो कुछ सिम्टम्स है उसको अगर आप जानेंगे तो जरूर आप पकड़ पाएंगे कि कुछ प्रॉब्लम है, एक चीज। और प्रॉब्लम ना हो, जो कि आपका क्वेश्चन है प्रिवेंशन, बिकॉज ब्लॉक्स जब अभी सभी लोगों का क्वेश्चन रहता है कि हमको अंदर में ब्लॉक है कि नहीं, और ब्लॉक है तो मैं उसको तुरंत ठीक कर लूंगा, अटैक नहीं आएगा। जबकि सच्चाई ये है कि आदमी के अंदर में ब्लॉक नहीं है, लेकिन ब्लॉक बनने में जो 2 तरीके के ब्लॉक होते हैं, एक ब्लॉक जिसके कारण अटैक आता है और एक ब्लॉक जो कि बहुत लंबे टाइम तक चलता रहता है, और वो हो सकता है कि वो आपको अटैक ना भी दे या पूरी तरीके से बंद भी हो जाए और आपको पता भी ना चले, या आप अपना काम करते रहें। तो जो एक्यूट ब्लॉक होते हैं जिसके कारण जो मतलब एक खून की नलियां जो मेजर आर्टरी से एक पे एक ब्लॉक होती है, तो उसमें प्लाक होता है जो कि 8 साल से 12 साल की उम्र में स्टार्ट होता है एंड इट प्रोग्रेसेस। तो ये जो प्लाक्स जो रहते हैं इसमें इन्फ्लामेशन होना, एंड इन्फ्लामेशन के बाद वहाँ आपका प्लेटलेट्स या ब्लड सेल्स का जमाव होना और उसके बाद ब्लॉक हो जाना, जो कि सेकेंड्स टू मिनट्स में हो जाता है। सो एक आदमी जिसका एंजियोग्राफी किया गया और वो पूरी तरीके से नॉर्मल था, डिस्चार्ज हो गया, एंड ऑल ऑफ ए सडन, और यू कैन से 2 दिन बाद वो हम लोगों के पास आया और ये सेम क्वेश्चन किया कि सर आपने कल हम लोगों को इवेलुएट किया था, सब कुछ नॉर्मल था, एंजियोग्राफी किया नॉर्मल था, तो मेरे को अटैक कैसे आ गया? तो क्वेश्चन फिर वहीं पर रहता है कि आदमी अगर रिस्क फैक्टर हो तो कुछ भी हो सकता है, और रिस्क फैक्टर्स को ही हम लोग कंट्रोल करने के लिए प्रिवेंशन करते हैं। उस मरीज में ओबेसिटी थी, उस पर मरीज में जेनेटिकल फैक्टर भी था, पेशेंट के फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव थी, बट उसको क्लैरिटी चाहिए था कि हमको डिजीज नहीं है, वो हम लोगों ने दिया वो भी उसके कहने पर कि हम एंजियोग्राफी करके प्रूव करना चाहते। बट जेनेटिक्स जब आपके साथ में है और आपके साथ ओबेसिटी आ रही है, आप फिजिकली इनएक्टिव है, देन सर्टेनली यू कैन डेवलप हार्ट अटैक। एंड हार्ट अटैक जब आता है तो रियली वी हैव टू ट्रीट इट, वी हैव नॉट नहीं आने के लिए हम लोग प्रयास करना है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट व्हाट आई फील अगर कुछ किया जा सकता है दैट इज एक्सरसाइज और वर्कआउट्स। वर्कआउट इज द ओनली पिल, और जिसको कहते हैं अगर डेली डोज पर आप ले रहे हैं तो आई यूज द वर्ड हेल्थ इन्वेस्टमेंट। यही एक इन्वेस्टमेंट है जो कि आपको किसी भी चीज से बचाता है। अगर आप
टाइम टू टाइम एक्सरसाइज और स्ट्रेस को मैनेज करते, मतलब यू आर नॉट गेटिंग ग्रीडी कि हमको हर चीज को मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में कर लेना है, और उसके लिए ना आप स्लीप को आप बाधित कर रहे हैं, और यू आर गोइंग आउट ऑफ वे, यू आर गिविंग मेंटल एंजाइटी टू योर सेल्फ, डूइंग अनइथिकल इमोरल थिंग्स। सर्टनली ओवर द टाइम ये जो हम लोगों का बैलेंस सिस्टम है बॉडी का, इट विल सर्टनली गिव अवे। और उसी सब चीज़ों में आपका रोल आता है कि आप इस सबको एक अगर डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं, मोरल लाइफ जीते हैं, एट द सेम टाइम you are giving enough time for your family, to your body which God has blessed you, certainly the chances of diseases will be less, which will be defined by your genetics। हो सकता है आपकी जेनेटिक्स में डायबिटीज हाइपरटेंशन है, आप उसको प्रिवेंट फिर भी कर सकते हैं। अगर आपके फादर को 40 साल की उम्र में हुआ तो वी कॉल एज जेनेटिकल एंटिसिपेशन, आपको 10 साल पहले आएगा। तो आपको पहले से ही अपने आप को माइंड मेकअप करके रखना है कि हमारे जो डाइट एक्सरसाइज का जो प्रोटोकॉल है वो कभी भी छूटना नहीं चाहिए। अगर अगर हम करते तो एटलीस्ट 40 की जगह हम 30 पर रहेगा, लेकिन अगर हम रेगुलर रहेंगे तो हो सकता है कि हम 40 को भी पार करने के बाद डायबिटीज डेवलप करें, या हो सकता है नहीं भी डेवलप करें। एंड आई टेक द अपॉर्चुनिटी फॉर माई सेल्फ। माई फादर इज अ डायबिटिक, माई मदर इज अ डायबिटिक, एंड डायबिटिक एंड हाइपरटेंसिव both, but my other brothers has developed diabetes and hypertension both. I still not I by the touchwood I should I'm not claiming this one, but I was very active from very beginning, and still I run at least 8 to 10 kilometers per day before starting my day, and I'm very much vigilant for my diet also. So those things make a difference. And touchwood, I am reaching 47. I have not developed so far. So कुछ चीजें हमारे हाथ में होती है, but result certainly it is God who is to give, and we have to accept it. No, I agree. I think I have the same family history, and I also have genetic risk, but I don't have diabetes, and I intend to keep it that way. So Yes. I think that's what I tell people कि जीन से ये पता चल सकता है कि एटलीस्ट रिस्क है, तो रिस्क होगा तो आपको जानकारी होगी तो आप ज्यादा काम करेंगे होपफुली कि क्या कर सकते हैं उसके बाद में। जब जैसे आपने कहा आपका रहन सहन, आप रोज 8 या 10 किलोमीटर दौड़ते हैं, वो अगर सब लोगों ने करना शुरू किया तो काफी उनका रिस्क कम हो सकता है। एक और चीज आपने कहा कि और आपकी इसमें एक और डाइट चीज भी। जोड़ेंगे, इसमें एक और चीज जोड़ेंगे, आजकल के टाइम में जो जनरेशन्स को जो व्हाट वी आर सीइंग, दे विल स्मोक, दे विल बी सिटिंग 8 to 10 hours, बट वो कोलेस्ट्रॉल का अगर वैल्यू देखेंगे तो उसमें 140 से 160 को लेकर, सर हमारा 160 इसके लिए क्या करना है। सो दे आर सो मच वरीड फॉर देयर कोलेस्ट्रॉल, बट दे आर नॉट वरीड फॉर देयर लाइफ स्टाइल। So that is very, very important. If you are going to change your lifestyle, even cholesterol is also not going to make much difference in your life. So we have to be very positive। if at all life में अगर कुछ आता है तो उसको हम लोग लेना है, उसको ट्रीट करना है, बट एक चीज पर हम लोगों को फोकस करके रुक नहीं जाना है। और स्ट्रेस और स्लीप की आपकी क्या राय है कि लोग बहुत कम सोते हैं आजकल लोग, और स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा हो गया है, तो क्या वो भी हार्ट डिजीज में मतलब किसी प्रकार मतलब वो इन्वॉल्व होता है या नहीं होते? सो कमिंग फर्स्ट फॉर द स्ट्रेस, स्ट्रेस को आप डिफाइन कैसे करते हैं, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। कॉर्टिसोल। नहीं नहीं, हाँ, यस, कॉर्टिसोल। सो कॉर्टिसोल इज वन ऑफ द वे टू डिफाइन इट, बट हमारा जो ये जो सोच है कि हम लोग स्ट्रेस, जिस काम को करने में आप एंजॉय कर रहे हैं, दैट कांट बी स्ट्रेस। आप देखेंगे कितने लोग 18 घंटे 20 घंटे लगातार काम कर रहे हैं, बट वो थकते नहीं हैं, और वो आएंगे आराम से सोएंगे, नेक्स्ट डे फिर वो 18 से 20 घंटे काम करते हैं। सो दे आर, अगर उनको देख, अगर दूसरा आदमी देखेगा तो शायद बोलेगा इतना काम करता है, इतना स्ट्रेस लेता है, कुछ ना कुछ हो जाएगा, बट ही विल नेवर। इफ यू आर एंजॉइंग योर जॉब without any what you call feeling that you are doing something out of way, means you are well paid for that and you are getting, means it is your attitude that makes the difference whether you are loving that job or not। हो सकता है कुछ दिनों के लिए लव करेंगे, बाद में हो सकता है छोड़ भी दें उस चीज को, देन आपको कुछ ना कुछ और पकड़ना पड़ेगा जिसको। तो जो आदमी लोग अपने काम को एक इंजॉयमेंट के रूप में लेते हैं, वो इंजॉय, दैट इज नॉट ए स्ट्रेस। वो आप 18 घंटे भी करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। एंड इसके बहुत बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आई डोंट वांट टू से एट दिस पब्लिक फोरम, बट जस्ट यू सी शाहरुख खान,
He's a smoker like anything, chain smoker. But he has not developed any of the heart disease or a cancer so far, being at 55. मेडिकल साइंस के अनुसार अगर रिस्क में अगर हम लोग देखेंगे तो ही विल बी एट अ वेरी हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग ऑल सॉर्ट। स्ट्रेस का नंबर अगर देखा जाए तो उनका स्लीप पैटर्न से लेके जितना मीडिया मैनेजमेंट करना और टॉप पर रहना फॉर लास्ट 20 ईयर, हाउ इज मैनेजिंग? द आंसर इज ही इज पैशनेट अबाउट हिज व्हाट यू कॉल जॉब, व्हाटएवर ही इज एक्टिंग, और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, एंड ही गोज फॉर इट। एंड द सेम थिंग फॉलो फॉर एवरी पर्सन। Whatever you are doing, if you are doing passionately, you will never develop the heart disease and never develop any health related problem. Your mind should be very clear what heart is needing. जिस दिन माइंड और हार्ट एक प्लेटफॉर्म पर रहते हैं, प्रॉब्लम नहीं होता। प्रॉब्लम तभी होता है कि आपका हार्ट चाहता नहीं है लेकिन आपका माइंड उसे करवाता है। दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। सो द डाइवर्जेंस ऑफ माइंड एंड हार्ट इज ऑलवेज डेंजरस। और वहीं पर जब आपका ऑन एंड ऑफ प्रॉब्लम हो रहे हैं, यू आर हैविंग रिलेशनशिप इशू, आइदर रिलेशनशिप इशू विद योर, नॉट ओनली विद स्पाउस, विद योर गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फ्रेंड्स, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट द वर्किंग प्लेस। अगर वहाँ प्रॉब्लम हो रहे तो यू हैव टू चेंज। यू कांट लीव विद दैट लाइज ऑफ हाई कॉर्टिसोल लेवल एंड हैविंग द सेम व्हाट यू आर सेइंग स्ट्रेस। वो स्ट्रेस हो गया, वो वर्क नहीं हुआ आपका। आपको एक पेमेंट मिल रही है, आप एंजॉय करें, इट्स गुड, बट यू आर फीलिंग योर टॉक्सिक बॉस इज ऑलवेज targeting you, you can't be able to live a healthy life, and then the problem will come. So that is called stress, and that stress is not good for anybody if it is for prolonged time. And heart attack और ये कहते हैं समय से पहले जो बीमारियां हुई उसका एक बहुत बड़ा कारण यहाँ भी आ रहा है। ये भी one this is precipitating factor and sometimes progression factor also of those particularly. Coming to the sleep part, so sleep is different for different persons. किसी को 4 घंटे की deep sleep is more than enough. If you are getting a deep sleep and you are feeling fresh after that, then that person is healthy enough. वो जो एक सिंगल वर्ड यूज कहते हैं 6 से 8 घंटा 10 घंटा, आई डोंट थिंक दैट इज, ये डिपेंड करता है कि आपका स्लीप पैटर्न कैसा है। आप अगर डीप स्लीप वाले हैं तो 4 से 6 घंटे में, 4 से 5 घंटे में यू विल बी फ्रेश। कितने लोग जिनका स्लीप का जो डेप्थ रहता है बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, उनको 7 और 8 घंटे के बाद भी फ्रेशनेस नहीं फील करते। बट द क्रक्स इज इफ यू आर डूइंग वर्कआउट्स, योर स्लीप विल बी ऑलवेज डीप। रैम वर्सेज नॉन रैम जिसमें हम लोग वर्ड यूज करते हैं, रैम मींस जिसमें रैपिड आई मूवमेंट होता है, जो कि सुपरफिशियल स्लीप में आता है, जिसमें ड्रीम आप देखते हैं, वो वाला जो फेज रहता है वो दैट इज नॉट हेल्दी, एंड दैट इज नॉट हेल्दी, दैट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। बट इफ यू आर गोइंग द डीप स्लीप जहाँ पर आपको पता ही नहीं है, जो कहा जाता है कि शून्य में चले जाते हैं, वो वाला जो स्लीप रहता है, दैट इज गुड फॉर लॉन्ग टर्म, एंड दैट इज गुड इफ यू आर एबल टू गेट 4 to 5 आवर ऑल्सो। सो आप पैशनेट है तो आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी, एंड यू विल सर्टेनली बी नॉट स्ट्रेस कि 18 घंटे भी काम करें तो आपको दिक्कत होगी। तो आप जो काम करें वो बड़े पैशन के साथ करेंगे तो बहुत पैशन के साथ कीजिए। आप देखिए अमिताभ बच्चन है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट पैशनेट पर्सन। आज 77 ईयर 78 ईयर्स की उम्र हो रही है उनकी। 1 घंटा वर्कआउट विदाउट फेल ही इज डूइंग फॉर लास्ट 40 ईयर्स व्हेन ही वाज इंटेस्टाइन का जो उनका ऑपरेशन हुआ था, एंड ही वाज सेइंग इन हिज ओन कि सब कुछ मेरा ले सकता है लेकिन वो मेरा 1 घंटा जो जिम का है वो कोई नहीं ले सकता है। दैट इज माई टाइम, इट इज माई टाइम विथ माई बॉडी। अपने आप को फिट रखने के लिए मैं रखता हूँ। वो जब 78 ईयर्स में कर सकते हैं तो वी आर वेयर वी स्टैंड, और उतने हाई से मतलब पोजीशन पर रहते हुए इतने सारे मतलब शेड्यूल को आप वो करते हैं और उसके बाद उसमें मेंटेन करते हैं। तो दैट इज अ डिसिप्लिन व्हाट ही हैज केप्ट। सो पैशनेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास पैशन किसी भी चीज का नहीं तो इट विल बी सर्टेनली गोइंग टू इनवाइट अ प्रॉब्लम। So take one passion, follow it, follow your heart. Your heart problem will not come in your life. So cardiologists recommended follow your heart, follow your passion. Then, Yeah, that yeah. is very important. So अब हम लास्ट वाले जो सेक्शन है उसमें जाते हैं। वो उसमें मैं रैपिड फायर बोलती हूँ उसको। 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो आप मॉर्निंग पर्सन हो या इवनिंग पर्सन, मतलब आपके सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव कब होते हैं? मॉर्निंग। और आप 6 to 8 आवर्स रन भी करते हैं उस समय? Yeah, that's why I will able to run. Otherwise, I would not be. True. Love it. And that is my first girlfriend. which is your favorite movie? आपने अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान दोनों के नाम लिए, तो which is your favorite movie? Anand. Anand. Any book that you can recommend?
Book to a lot of books I enjoy. It is depend from the genre to genre, but yes, I go more on the spiritual side, and I read more on the, if I have to read, that is self-help book as well as the business book, because I learn a lot of things in those things, in those books. So a lot of books are there. Atomic Habit is there. It is a very good book, and I'm not having the names, but all That's books okay. give a lot of insights. One is good enough, I think, for. So, other than doing the being the electrician of the heart, so जो आप कार्डियोलॉजी काम करते हैं, उसके सिवाय और क्या करते हैं? जो आपकी हॉबीज क्या है? Hobbies though, running, and the most thing, if really I love, I want to give surprise to the person who don't know me. So if I know that particular person is having this birthday, I will try to make that day special for them. That is way. If the person is not anticipating, I will try to reach. That is my hobby, to give surprises and make them happy. Because if they are happy, I feel like happy. That is the way I see. And finally, whatever I do, I go to the core. Means uh, unless the person is not satisfied, I don't give up so easily. Either it is in the seeing the patient or in any relationship also. I want to go extra mile for that. That's fantastic. Nothing to share. तो आपने आपने मेडिकल जो कॉलेज आपकी है वो आपने मुजफ्फरनगर क्या मुजफ्फर एंड बीएचयू में आपने जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की, लेकिन आपके अभी आप हैदराबाद में हो, तो आपकी फेवरेट प्लेस कहाँ पे है? Favorite place, favorite place is Hyderabad. I love this city like anything because of two reasons. Means it is a more a cosmopolitan. You never feel that you are in the southern part of the India like other cities. दूसरा चीज यहाँ का जो मौसम, मीन्स द क्लाइमेट इज वंडरफुल. मीन्स इट इज नॉट समटाइम somewhat hot, but it has got all the four states and in a balanced way, not like the northern part which has become very cold one time, and sometime it will be very hot. So all climate in a balanced. And third, the people. So people are very, means they are workaholic, they are and you can get all the states of the culture of India here in this city, from Hindu, Muslim, Sikh, all everybody with you will be getting. And so coming from the defense background, we have been always moving from one city to other city. So we enjoy the what you call cosmopolitan wherever it is. We don't want to be confined to one place. So that is one of the reason Hyderabad I chose, and I love this city. That's great. I think I love Hyderabad too. I've been here for a long enough time now. So thank you, Dr. Ashutosh. And if there are anything that you feel that I didn't touch upon, or something that you feel that you can give as a message to our viewers, maybe this is a good time. Yeah. So my message for all the patients as well as all the Indians, particularly, we can't afford the heart attack and the intervention work which is going on. We can still prevent by the awareness, prevent not by going the social media and Dr. Google to get the information and get a lot of fear and lot of investigations, pseudo investigations and stenting, which is going rampantly in the medical field, because now it is no more a healthcare system, it is a health industry. And we have to be very much choosy, and we have to be knowing what is best for us. And the best is self-investment. If you are investing on yourself, even the disease genes are there, still you can do good. And always have a positive attitude. As attitude is one thing which makes life hell and heaven. So if you are having a positive attitude, which whatever is coming, because you can't change the thing which is not in your hand. Like Corona has come, we have to change ourselves. We have to confine for a particular time in our house. We have to take the precautions. I should not get the Corona. It is not a right way of living. Or I should not die of Corona. It is not the way I should think about. If Corona आएगा तो हम उसको देखेंगे. उसी तरीके से हार्ट के प्रॉब्लम आते भी हैं तो be bold. If life has been given by somebody, he is only going to take it. Still, you are having the way to fight back and come back with, yes, I can do it. And most of the patients
and I see the person who are really positive in their thoughts, they usually do very good. So my suggestion is that even you are having diabetes, hypertension, lipid problem, even you have gone to the heart attack, even you have gone for the bypass or any disease, be positive. Don't leave anything, any negative news either in the ears, or you should eyes, and keep away from the social media which is giving a lot of negative news. So those directly or indirectly attacks your amygdala, and from amygdala, which is the what you call sensitive brain part, which activate your cortisol level. So that is not good for the health in the long term. So medical news, you should go to the doctors, and if at all you want to know whether you are having disease, they will clarify you better. I think that's so. We can't afford, and I think we all should be aware enough, basic information we are having, and don't Google too much, directly reach to the doctors and be in the company of healthy habits. I think couldn't have said it better. So that is a great message. Thank you so much. आपने आज बहुत सारे प्रश्नों का जवाब दिया है जो होपफुली बहुत लोगों के लिए फायदेमंद रहेगी. और यू नो आप सब, जैसे आपने कहा, आपने सिर्फ माइंड बॉडी का सिर्फ वही नहीं कहा कि क्यों होता है, आपने ये भी समझा दिया कि अमिगडाला से लेके कोर्टिसोल कैसे प्रोड्यूस होता है. Yeah, uska, and if you want to know, one, sir, hello, yeah, one book will be coming that I have written just for the patient's sake, because पेशेंट लोगों को ये नहीं पता, तो गूगल करके तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, लेकिन उनको हेल्प करने के लिए किताब लिखी है, जो कि हो सकता है कुछ दिनों में आप लोगों को अवेलेबल हो. एंड द बुक नेम आई जस्ट वांटेड एट योर चैनल, इट विल द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी if I can show you. Can I show the screen? Yes. Yeah. Now you can. So this is the book which is going to come, and this book, if you can say, its name is Heart Harmony. It took almost 9 to 1 month, 1 year to complete, and I have touched most of the heart-related problem, including the genetics, which is related to you, how that people should approach, and what are the symptoms on which they should be there. And if you have been diagnosed with heart disease, how you have to approach, what are the options available, what are the treatment options, and if at all you are not able to reach, if you are living with the disease, that's why the word is understanding and living with the heart disease. If you have been diagnosed also, how to live, this book is going to guide you. So that maybe month period, probably we may be able to bring on the most of the book self, including Amazon. So it may be available, and if anybody want to reach us, certainly we will try to help them for that book also. So when will it be available in Amazon? Maybe we are expecting by, I think, before Diwali we will be able to do it. So it will be a good gift. It is the last process of what you call this. That's great. So I think I can't wait to read the book, and I'm sure many other people are also looking forward to reading that book. So thank you so much, Dr. Ashutosh. It has been a pleasure. और एक और मेरा जो रिक्वेस्ट था, जो आपने हिंदी में सारे सवालों का जवाब दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ये इन्फॉर्मेशन जल्दी से नहीं मिल सकता है. सो इसलिए थैंक यू वेरी मच अगेन. Thank you so much. It was a pleasure talking to you, and really you have asked questions in a very lively way that I enjoyed the whole moment. How the time has passed, I was not able to grab it also. Means it has gone like anything. So fastly, there were so many questions we have addressed, and thank you. Thank you.